Hello, good morning students. Students, let's start reading the remaining part of this chapter number 5th. One of the early international commissions. One of those all international commissions which had been organized by different agencies in the earlier days, which always worked inter alia means among other things, which dealt with the question of ecology, which apart from doing any other works, which apart from attending many other jobs, any other activities, also worked with the question of ecology, and environment, both are the synonyms, was the branded commission. The name of that commission was branded commission. Though in the ancient time a number of commissions, international level commissions, had started working, and among those all internationally organized commissions, branded commission was also one of them. And that the branded commission started working with the main question which was raised by different kinds of persons, including the author Nani Palkhiwala, regarding the declining health of the earth and ecology, environment, which had a distinguished means highly reputed Indian as one of its members. So in that commission, in that branded commission that worked internationally and globally for the benefit of, for the welfare of, for the upliftment of the depleting, or you may say the declining health of the environment all over the world, had also contained or had also got the membership of a well-known, a highly reputed, prestigious Indian environmentalist whose name was Mr. L.K. Jha. Mr. L.K. Jha was the member of branded commission, and that the branded commission was an international commission, and that commission worked for the benefit of, for the welfare of the environment, doing some more other kinds of works. It also worked only for the welfare of the earth. The first branded report raised the question when that the commission was organized. So the first report which came from that commission's persons, which came from the members of that commission, branded commission, raised a question. And what was the question? Are we to leave our successors scorched? Scorched means excessively burnt. Scorched means excessively burnt and dried. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts? Advancing means growing deserts, increasing deserts, impoverished landscapes. Impoverished means badly. Impoverished stands for here badly polluted, badly or highly polluted, defaced, soiled, highly polluted, defaced and badly damaged landscapes and ailing environment. I would like to translate this the question first into Hindi. Mr. L.K. Jha was the member of the branded commission. He was from India. A number of other members had also got their membership in that commission, whose names are not mentioned here. But Mr. L.K. Jha was the member of that branded commission. And the first report which came from the branded commission raised a question before the common man in the world.
दुनिया में आम आदमी के सामने, प्रत्येक एक व्यक्ति के सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उन्होंने रखा। और प्रश्न क्या था कि क्या हम सभी को आज वर्तमान समय में हम सभी मानव जो हम सभी मानव जो इस वक्त धरती पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हमारे अपने उत्तराधिकारियों को हम छोड़ दें? क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ें? क्या छोड़ें? अ स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, क्या हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के बच्चों के लिए निरंतर बढ़ रहे मरुस्थल, निरंतर बढ़ रहे सुनसान प्रदेशों वाले जला भुना हुआ एक ग्रह, क्या हम अपने आने वाले उन उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ करके चले जाएं जिस ग्रह के ऊपर निरंतर क्या बढ़ते जा रहे हैं? मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। जिस ग्रह के ऊपर क्या बढ़ते जा रहे हैं? जितने भी भूदृश्य हैं वो सब दूषित होते जा रहे हैं। इम्पावरिस्ट का मतलब बैडली डैमेज्ड, बैडली पॉल्यूटेड, लुक इन वेरी बैड शेप, बड़े ही बुरे तरीके से प्रभावित दिखाई देने वाले जो हमारे भूदृश्य हैं, इनमें कि माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, रॉक्स हैं, क्या हम इस प्रकार के इस ग्रह को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ करके जाएं जिस ग्रह के ऊपर निरंतर मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, जिस ग्रह के ऊपर जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो सभी दूषित होती जा रही हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जिस ग्रह का पर्यावरण बीमार होता जा रहा है, रुग्ण होता जा रहा है। इज इट फिजिबल, इज इट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल ऑफ अस, दैट वी शुड लिव such kind of planet for the generation, for the next generation, for the children of the next generation who will be our successors, where they will find only the deserts and deserts, where they will find no trees, where they will find the polluted and highly polluted and badly damaged landscapes, where they will find the condition of the environment badly sick. Is it possible that we can live such kind of impoverished, such kind of scorched planet? क्या हम इस प्रकार का एक बहुत बेकार हालत में दिखाई देने वाला एक ग्रह, ये पृथ्वी एक ग्रह है, क्या हम इस प्रकार का एक ग्रह हमारे अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ करके जाएं? प्रश्न किया। अब वो उस कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब चाहिए हमें। अब आप यदि जवाब कहते हो नहीं हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो आप हमें अश्योर करें कि भाई आप पेड़ काटना बंद कर देंगे, मछलियाँ पकड़ना बंद कर देंगे, बहुत सारी मछलियों को भोग नहीं करेंगे, बाकी जो भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का कम से कम वो भोग करेंगे। तो ब्रांडेड कमीशन के लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन wrote in his thoughtful book The Global Economic Prospect, the name of that book was The Global Economic Prospect, points out Mr. Lester R. Brown, who is the author of the book The Global Economic Prospect, which is called his thoughtful book. Mr. Lester Brown writes it or points it out in his book that the Earth's principal biological systems are four. That the Earth's biological systems are four. There are only four systems. There are only four pillars, foundations on which the Earth exists. There are only four pillars. The first is fisheries, the second is forest, the third is grasslands, and the fourth is croplands. Mr. लेस्टर आर ब्राउन अपनी बहुत ही ज़्यादा विचार पूर्वक ढंग से लिखी हुई अपनी उस पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें वो ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा लिखते हैं कि भाई देखो, पृथ्वी की महत्वपूर्ण चार जैविक परिस्थितियां हैं। इन चार मुख्य जैविक परिस्थितियों पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। मत्स्य क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, हरे भरे घास के मैदान और फसली क्षेत्र, and they form the foundation of the global economic system, and these the four sectors also determine
ऑल्सो determine द ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम। ये चार ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन चारों क्षेत्रों के आधार के ऊपर पूरे विश्व का आर्थिक ढांचा टिका हुआ है। In addition to supplying our food, these the four systems not only supply our food, not only supply food to all of us, these four systems provide virtually all the raw materials. In reality, they also provide us all kinds of raw materials. Not these the main four systems. These the main four biological systems. These the main four sectors, including fisheries, forests, grasslands, and croplands. Not only help us providing the food, but they also help us providing a lot of raw material. ये चार जो क्षेत्र हैं, जिन चार क्षेत्रों के आधार पर पूरे विश्व की इकोनॉमी टिकी हुई है, इन्हीं चारों क्षेत्रों से हमें भोजन मिलता है। यही चारों क्षेत्र न केवल हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं हम सभी लोगों को, बल्कि ये चार जो क्षेत्र हैं ये यथार्थ रूप में वास्तविकता के साथ में हमें वो कच्चा सामान भी उपलब्ध कराते हैं फॉर इंडस्ट्री। जिस कच्चे सामान की आवश्यकता किसके लिए होती है? उद्योगों के लिए होती है, उद्योग के लिए होती है। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, छोड़ करके खनिज जो होते हैं उन खनिजों को, और पेट्रोल से निकाले हुए जो भी सिंथेटिक जो भी कृत्रिम चीज़ें बनाई जाती हैं, पेट्रोल से जितने भी सिंथेटिक आइटम्स बनाए जाते हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब कच्चा सामान उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है वस्तुएं बनाने के लिए। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है कि विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में, इन द लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अनसस्टेनेबल मीन्स अनकंट्रोलेबल लेवल। Human beings, in other words you may say people living in the world have started consuming the things of these all four sectors in such a great amount that they seem to come to their end. They have stood at the breaking point. In large areas of the world, in many countries of the world, human claims stands for here the consumption of the human beings on this system. Means here I would like to use the preposition of consumption of the human beings of these all systems. I would not like to use here the helping or because the consumption is a singular subject, is reaching an uncontrollable level. Means has reached an uncontrollable level. Human beings, all the humans, all the people living in different countries of the world have started consuming these all the sectors, these all the things of these four sectors at such a level, a point where their productivity is being impaired. Impaired means badly affected, damaged. इस स्तर तक हिंदी में समझ लीजिए। वो कहता है विश्व के बहुत बड़े क्षेत्रों में, भाग में, विश्व के अधिकांश इलाकों में, अधिकांश देशों में मानव की इन सभी चारों के चारों जो ये सेक्टर्स हैं, चारों के चारों जो ये खंड हैं, इन चारों के चारों खंडों के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें मछलियाँ ले लीजिए, चाहे उसमें वन ले लीजिए, चाहे उसमें अनाज ले लीजिए, चाहे उसमें कुछ भी ले लीजिए, इन चारों प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों पर मनुष्य का अधिकार इस कदर बढ़ चुका है, कंजप्शन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इनकी उत्पादकता बिल्कुल ख़त्म सी होने लग गई है। जितना ज़्यादा कंज्यूम होता जाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती चली जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, जब इस प्रकार से सब होता रहेगा तो मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोलैप्स मीन्स फॉल डाउन टू एंड, मीट टू एन एंड। मत्स्य क्षेत्र जो है वो बिल्कुल लुढ़क जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट्स डिसअपियर, वन अदृश्य हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और हरी भरी घास के मैदान हैं वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे, वीरान बंजर भूमि में। बैरन का मतलब वीरान होता है, डेजर्टेड। वो डेजर्टेड जो है, वीरान जो भूमि होती है, मरुस्थलीय भूमि होती है, इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी वो सारी भूमि। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट,
डिटेरियोरेट मीन्स स्पॉइल बैडली, खराब हो जाना. वेस्ट, गो टू इनटू हैवी वेस्ट. स्पॉइल बैडली, वेस्ट और बिकम टोटली. ओके, कम टू एन एंड एंड गेट लॉस्ट, खत्म हो जाना. वो कहता है कि इस प्रकार से चारों के चारों क्षेत्र बिल्कुल नुकसान उठाएंगे. व्हेन दिस हैपन्स, जब इस प्रकार से मानव का उपभोग इन सभी चारों क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा के एक स्तर पर पहुंच जाता है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी ही बाधित नहीं होती है. प्रोडक्टिविटी पर ही बहुत बुरा असर नहीं पड़ता है. लेकिन जब इस प्रकार से होने लग जाता है तो मत्स्य क्षेत्र क्या होगा, जब इस प्रकार से होने लग जाता है तो मत्स्य क्षेत्र निश्चित रूप से लुढ़क जाता है. मत्स्य क्षेत्र खत्म हो जाता है. वन जो है वो अदृश्य होने लग जाते हैं. हरी भरी घास की जो मैदान है वो वीरान बंजर भूमि में तब्दील हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं. और जो खेत खलियान वाले, जो फसल करने वाले जो भूमियाँ हैं वो भी अपनी उत्पादकता को ख़त्म कर देती है, वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, जितने भी ज़्यादा देश, जिन देशों में प्रोटीन की ज़्यादा डिमांड होती है, प्रोटीन को ज़्यादा भूख लगी रहती है, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, वहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा मछलियों का उपभोग करना एक आम बात हो जाती है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर मीन्स गेट होता है बेटा, रिसीव. In the poor countries, in the developing countries, it is seen that the local forests are being cut down. Decimated means cut down, killed, in order to receive firewood for cooking. भोजन पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए. और वहाँ पर जो गरीब देश हैं, उन गरीब देशों में स्थानीय जो वन हैं, उन स्थानीय वनों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई जाती है. बेहद रूप से उन स्थानीय वनों में उन पेड़ों को काटा जाता है ताकि वो अपने ईंधन के रूप में जलाने वाली उस लकड़ी को वहाँ से प्राप्त कर सके, बटोर सके. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव. परिणाम स्वरूप इस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होने लग जाता है तो वो कहता है इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव. दिस द फायरवुड विच द पीपल गेट आफ्टर कटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हैज़ बिकम सो मच एक्सपेंसिव, कॉस्टली, दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट means what is contained inside the pot. What goes under the pot means what burns under the pot. Pot means container. कोई बर्तन जो होता है, बर्तन के नीचे चूल्हे में जो चीज़ जल रही होती है, कौन सी चीज़ जल रही होती है? लकड़ी जल रही होती है, ईंधन वाली लकड़ी. Now costs more than what goes inside it. This the firewood becomes so much expensive, more expensive than the vegetable or than that of the other thing which is put into the container pot. वो कहता है चूल्हे के नीचे जो आग जलाने वाली लकड़ी, जो लोग कुछ स्थानों के ऊपर तो ये ईंधन इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि जो बर्तन के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसको उबालने के लिए, उसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, पकाने के लिए, उसकी जो कीमत होती है उससे कहीं ज़्यादा कीमत उस बर्तन के नीचे चूल्हे में जल रही लकड़ी की होती है. इतना ज़्यादा ईंधन महंगा हो चुका होता है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मियर्स, मीन्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मियर्स एन एनवायरमेंटलिस्ट, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ evolution, he says that tropical forests are really the powerhouse of the evolution. Okay, several species of life face extinction as a result of its destruction. Okay bete, so Dr. Mears, according to Dr. Mears, the tropical forests works as the powerhouse of development. Evolution means development होता है बेटा, कि ये जो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वनों की मात्रा होती है, वो वास्तव में एक विकास का स्रोत होते हैं, बेस होते हैं, पावर हाउस होते हैं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं. ऐसा डॉक्टर मियर्स लिखते हैं. सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. द मोर, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन सम अदर वर्ड्स, द more loss the forests are facing, the more number of wildlife is disappearing. The several species of life face extinction means great loss.
एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे वनों का नुकसान होता है वैसे वैसे बहुत सारे वन्य जीव जो हैं वो भी लुप्त होते चले जाते हैं, एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं, डिसअपियर होते चले जाते हैं, वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर मियर्स कहते हैं कि ये जो वन है, उष्णकटिबंधीय जो वन है, जहाँ ज़्यादा वनों की मात्रा है, संख्या है, वहाँ पर उन वनों को बचा के रखना चाहिए। वही विकास का असली आधार है और उनको जैसे जैसे नुकसान पहुँचा जाएगा वैसे वैसे ये सब आने वाले जीवों का जीवन भी खतरे में दिखाई देने लगेगा। तो बेटा द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रेड बाय अस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इट विल बी कंप्लीटेड आई थिंक सो इन द नेक्स्ट 1 or 2 lectures. Thank you.